شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج ایک بڑی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ ہے امریکہ کے تعلق سے، کہ امریکہ میں بہت بڑا انقلاب آ گیا کہ امریکنوں نے قربانیاں دینی شروع کر دی۔ جس طرح سے مسلمانوں میں بڑی قربانی، پورے اسلام میں ایک بڑی قربانی دی جاتی ہے، لاکھوں کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کروڑ کا بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی بیل ذبح کیا گیا۔ اتنی بڑی مہنگی اور اتم قربانیاں دی جا رہی ہیں، سونے سے سونا، اچھے سے اچھا صحت مند جانور قربان کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے خدا کو، اللہ کو، کہ ہم تجھے پیار کرتے ہیں اور ہم تیری سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہی بات اب امریکہ میں عام ہو چکی ہے، لیکن امریکن جو ہے وہ اسے تھینکس گیونگ کے نام پہ مناتے ہیں۔ تھینکس گیون کا مطلب ہے کہ جو تو نے دیا اس کا شکریہ۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ میں فیشن ہے کہ جو مین ہائی وے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ان بڑے بورڈوں کے اوپر لکھا ہے کہ جیزس لوز یو۔ پھر ایک بورڈ ہے جن کے اوپر لکھا ہے آئی لو جیزس۔ کسی بورڈ پر لکھا ہوتا ہے ہی از مائن، کہ وہ میرا ہے۔ کسی بورڈ پر لکھا ہے آئی ایم ہز شیپ، میں اس کی بھیڑ ہوں۔ کسی بورڈ پہ لکھا ہے آئی فائنڈ اٹ، میں نے اسے پا لیا یا مجھے وہ مل گیا۔ اور خوشی خوشی کہتے ہیں ہم مسیحی ہیں، آئی ایم کرسچن، آئی ایم فالوور آف جیزس کرائسٹ۔ یہ امریکنوں کا مزاج بن گیا ہے۔ امریکن بڑی خوشی خوشی بتاتے ہیں۔ اب رہی بات مڈل ایسٹ کی یا ایسٹرن کنٹریز کی، تو یہاں پر تو کرسچن تھے نہیں، اور اگر تھے تو وہ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں، اور میں آج آپ کو پوری بات بتاؤں گا کہ مجھے اس کی کیا کیا باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب گورے لوگ پاک و ہند میں آئے اور یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو بھی ہٹ کیا، ہندوؤں کو بھی ہٹ کیا، اور سکھوں کو بھی، تو وہ تو ان کو منہ نہیں لگاتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم ان لوگوں میں رہنے کے ڈھنگ، ان کا طور طریقہ کس طرح سے جانیں، کن لوگوں کے پاس ہمارا اٹھنا بیٹھنا بن جائے کہ ہمارا بھی دل لگ جائے، کیونکہ گورے لوگ جو ہیں ان کو دل لگانے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کوئی پرندہ رکھ لیتا ہے، کوئی کتا رکھ لیتا ہے، کوئی بلی رکھ لیتا ہے، اور کئی ہیں جنہوں نے بس اس طرح کی کئی اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کئیوں نے، میں نے دیکھا کہ ان کے گھروں میں ایک چھوٹا سا لیلا جو لیم ہے، جو بھیڑ کا بچہ، وہ رکھا ہوا ہے، اس کے گلے میں اتنا بڑا رسا باندھا ہے۔ مقصود ان کا ان جانوروں کے ساتھ پیار نہیں ہے، وہ صرف اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے گھر میں ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کسی کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر آ کے پاک و ہند میں تو جو سانسی تھے، جو گگڑے تھے، جو مراسی تھے،
जो ओढ़ थे, जो पक्षीवास थे, और जो मसल्ली थे, और जो बस गए गुजरे थे, जिनको ना इस्लाम का पता, ना सिखिज्म का पता, ना हिंदुइज्म का पता, ना बुद्ध मत का पता, किसी चीज़ का पता नहीं। और उन्होंने उन लोगों को करीब बिठाया, उनको थोड़े से बिस्किट खिलाए। उनको ये गोरों को बिस्किट खिलाने का भी बड़ा चस्का है। इनके पास जो बिल्ली, कुत्ता या कोई भी चीज रखी हो तो उसको बिस्किट देते हैं, और वो बिस्किट खाने के लालच में उनके आगे पीछे दुम हिलाता फिरता है, और बस पाँव चाटता है और पाँव में लेटता फिरता है। अब मेरी बात को मेरा ख्याल समझ रहे होंगे। और जब उन्हीं के बच्चे जब और पैदा होते हैं तो उनका भी यही तरीका होता है। अब हम यूरोप में रहते हैं, हम इन लोगों में रहते हैं, हमें इनकी मेंटेलिटी का पता है, और हम इनको कुछ भी नहीं समझते। या हैं इधर भी, अब तक भी उनको जो आदत पड़ी हुई है पाँव चाटने की, वो चाटते रहते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको पता है कि ये हमारी टक्कर के लोग हैं, इनकी पढ़ाई हमारे साथ या हमसे भी ज्यादा है, इनका जॉब हमसे ज्यादा बेहतर है, इनका नॉलेज हमसे ज्यादा बेहतर है, और ये किसी की परवाह नहीं करते, ये साहब जी नहीं करते, ये साहब को देखकर कमले नहीं हो जाते। तो फिर उनसे ये थोड़े से खाइफ रहते हैं, थोड़े से परे परे रहते हैं। तो उनके अंदर इस बात की आदत बनी हुई है कि वो थैंक्स गिवन करते हैं, अपने बच्चों का कुछ ना कुछ सिर का सदका निकालते हैं, और वो फिर इंडिया पाकिस्तान में भेजते हैं, और इंडिया पाकिस्तान वाले जो हैं वो हालेलुया के नारे लगाते हैं, और वो सिर के सदके लेकर खुश होते हैं, और ये देते हैं थैंक्स गिवन। खुदा का नहीं कहते, ये कहते हैं थैंक्स गिवन। जो उसने दिया है या जो हमने कमाया है उसका हम शुक्रगुजार हैं। चलो हम थोड़ा सा गरीब गुरबा को दे दो, कुछ थोड़ा बिस्किट किसी के मुंह में डाल दो, ताकि वो भी दुम हिलाता रहे और वो भी खुश रहे। और अब हमारे इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि वो टाइयां लगाते हैं, बैग पकड़ के, तो इस तरह खुद को पता नहीं है, खुद किसी से चक्कर दे के कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी बात कहने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि अगर आप मुसलमानों को देखो और वो कुर्बानियां देते हैं, क्योंकि वो नस्ली लोग हैं, वो कुर्बानियां देते हैं, उनकी नस्ल है, कोई क्रैश के हैं और कोई मुगल खानदानों के हैं, कोई किसी, मैं अब ये जाते नहीं उसकी लिस्ट दिखाना चाहता, लेकिन आप जानते हैं उनके रंग डांग देखो, उनके कद काठ देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो नस्ली लोग हैं। अब सिखों को देख लो, उनके बच्चों के कद देखो, उनके रंग डांग देखो, क्योंकि उनके भी खानदान हैं। अब ये जो इस तरफ आ जाओ, जो ईसाई या साई कौम है, इनका ये बात है कि इनका किसी का रो पिट के रंग भी साफ नहीं होता, कद भी मरे मुक्के हैं और बुरी हालत है। हाँ, सब के सब ऐसे नहीं है, बीच में कुछ हैं जो असली लोग हैं, जिन्होंने जो खानदानी लोग थे, जिनके अंदर खुदा के रूह ने काम किया और उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। लेकिन ज्यादातर वो साबों से बिस्किट खा के तो मसीही बन गए, किसी से खुश्क दूध ले लिया, किसी से चावल ले लिए, किसी से पनीर ले लिया, किसी से फ्लीट बूट ले लिए, किसी का ऐसे ही आगे पीछे फिर के तो उनके उतरे हुए कपड़े पहनते रहे और बड़े राजी रहे कि चलो जी ठीक है कि, और उन्हीं में से कोई ना कोई लड़का उनका को पादरी बन गया, और वो फिर कई मजमा लगाने वाले पादरी हैं, ऐसी चीखे मार मार के बोलते हैं, मेरा ये मेरा वो, कि तुम्हारा क्या स्टाइल है, तुम क्या जोकरों की तरह करते हो। खुदा के कलाम का कुछ, हमारा कल्चर बाइबल का कल्चर है, हमारा रख रखाव बाइबल के रस्म रिवाज है, हमारा सकाफतो तमदन बाइबल का है। हम ना गोरों के
लोग हैं, ना उनके मुतासर हैं उनसे, ना हम किसी और से। हम अगर मुतासर हैं तो मसीह खुदावंद की शख्सियत से हैं, इंप्रेस्ड हैं तो मसीह खुदावंद की शख्सियत से हैं। कईयों का खुदा गोरा है और कईयों का खुदा काला है। कई अफ्रीकनों पे, वो अफ्रीकन बेचारे उनका अपना बड़ा बुरा और मंदा हाल है। और बस ये जी, कई कहते हैं जी मेरा तो अफ्रीकन बॉस है, वो उसके गुण गाते रहते हैं। कोई कहता है जी मेरा साहब, वो साहब परेशान हो जाते हैं। हमें पता है इधर हमारे चर्चेज में इनको तो सही दुआ भी नहीं करनी आती, और जब ये पाकिस्तान इंडिया में जाते हैं तो वहां पर बंदे फुड़क फुड़क के गिरते हैं, और वो खुद भी हैरान हो जाते हैं क्या हमने तो कभी सही तरह दुआ भी नहीं की, तो यहां इनको क्या कौन सा करंट लग गया। पता नहीं कि आगे सारे ये पादरी साहब ने बच्चू मजूरे इकट्ठे किए हुए हैं। इनको कहा है जब साहब कहे हालेलुया तुमने फुड़क फुड़क कर गिरना है, और बाद में बरकत तो मिलती नहीं। अमेरिकन थैंक्स गिवन कर रहे हैं, मुसलमान कुर्बानियां दे रहे हैं, हिंदू दिवालियां कर रहे हैं, सिखों के व्रत होते हैं, लेकिन हमारा बस वही तरीका, मसल्ली, गगड़े, सांसी, ओढ़, पखीवास, पता नहीं क्या क्या खाने वाले, और उसी तरह से आज तक यही है कि कुछ मिल जाए। अगर चाहते हैं कि आप भी हालात बदले हुए देखें, आपके भी हालात बदल जाएं, तो देना सीखो। जब दोगे, थैंक्स गिवन करोगे, कुछ कुर्बानी करोगे, तो फिर आपके हालात बदलेंगे। नहीं तो नाले और जो बिल्कुल गंदा एरिया है वहीं पे रहते रहोगे, जहां ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना लेना ना देना, बुरी हालत। मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। कई तो बड़ी इज्जत और एहतराम से बात करते हैं, कई सवालिया तरीके से बात करते हैं, कई बड़े उखड़े उखड़े बात करते हैं कि जी आप इस तरह की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा भाई मेरा मुंह है और खुदा का कलाम है और ये सच्चाई है। अगर आपको सच्चाई का पता है तो आप बताओ, अगर आपके अंदर कलाम सुनाने की कोई जुर्रत है तो सुनाओ। कलाम में तो यहां तक लिखा है कि ये गूंगे कुत्ते हैं। मैं तो नहीं ये कहता, मैं तो फिर भी थोड़ा गोलमोल कर जाता हूं। साफ तौर पे लिखा है ये गूंगे कुत्ते हैं जो भौंकना पसंद नहीं करते। फिर यहां तक लिखा है कि ये तो नवाला पाके ही सलामती सलामती पुकारते हैं, हालांकि सलामती है नहीं। इनका पेट इनका खुदा है। जितने स्कूल के बिगौड़े हैं वो तो अब पादरी बने हुए हैं। हवाले का सही तौर पे उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। कहेंगे हम आज 10 ज़बूर पढ़ेंगे। ओ भाई 10 ज़बूर नहीं होता, 10वां ज़बूर है। आज क्या तुमने पहले से शुरू करके तो 10 ज़बूर पढ़ने हैं? क्योंकि अगर सेमिनरी गए हैं तो वहां ध्यान ही नहीं किया। वहां पे तो सिर्फ एक ही दिमाग में था कि बस मुझे कोई टांग आ जाए, कोई ऐसा तरीका आ जाए कि मैं किस तरह किसी साहब को ठग लूं और उसके बाद उससे एक परमिट ले लूं ताकि खुद सादे लोगों को ठगता रहूं। जो मैंने पिछले दिनों में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था कि इन लोगों ने चर्च को कसीनो सेंटर बना दिया, जुआ खाना बना दिया, कि हमें दिया करो पैसे, ये खुदा तक पहुंच जाएंगे। आप हमें दे यकी दो, आपको खुदा बरकत देगा। भाई खुदा बरकत देगा तो खुदा के बंदों को दो ना। खुदा के बंदे कौन से हैं? पादरी। हर वो खुदा का बंदा है जो आपके लिए इम्तिहान है। फर्ज करो कोई सर्दी में ठिठर के बैठा हुआ है, दुनिया गुजर रही है, आपकी निगाह उस पे जा रही है, आपने उसको देख लिया है। जिसको आपने देख लिया है इसका मतलब है कि वो आपकी जिम्मेदारी में आ गया कि उसके ऊपर आप ये नहीं कि आप उसको आड़ीदास के कपड़े लेके दो या बॉस के लेके दो या कश्मीरा का कोट पहना दो। उसको लंडे का ही कपड़े बड़े हों लेकिन उसका तो तन तो ढांक सकते हो। जो आपने देख लिया है इसका मतलब है कि खुदा ने आपको दिखाया है कि ही इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जिम्मेदारी है।
इस जिम्मेदारी को संभालो। उस अमीर आदमी के घर पर एक लाजर, एक गरीब आदमी, एक कमजोर आदमी, एक जरूरतमंद आदमी रखा गया था। अमेरिका वाले थैंक्स गिवन करते हैं, मुसलमान कुर्बानियां देते हैं। आप कुछ ना कुछ तो करो, कुछ तो करो। अपने घर में से कोई पुराना जूता किसी के पांव में डाल दो। सिर्फ बिस्किट खाने की आदत से निकलो। अब दुम हिलाने वाली आदतें छोड़ दो, पांव चाटने वाली आदतें छोड़ दो, सांपों के पांव में लेटने की आदत छोड़ दो, फिर आपको बरकत मिलेगी। खुदा के कलाम पर अमल करना सीखो। जरूरी नहीं कि आप किसी को हलवा पूरियां खिलाते रहो। आप एक नान और थोड़े से चने अगर किसी भूखे को खिला दो तो यह भी थैंक्स गिवन है, यह भी कुर्बानी है। ठगबाजियां ले डूबेंगी, बर्बाद कर देंगी। लोग मुझे कहते रहते हैं, क्यों आप इस तरह करते हो? मैं उनको कहता हूं कि यूहन्ना जो था वो पुकारता था, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि रास्ते सीधे बनाओ। हम किसी से चंदा नहीं मांगते, हम ये कहते हैं कि जो कलाम कहता है वो करो। ये नहीं कि पादरी ढूंढ लो और पादरियों को देते जाओ। जो कल को साइकिलों के पंचर लगा रहा था, जो कल को वहां पर फ्रूट बेच रहा था, जो कल को वहां पर रंग सफेदियां कर रहा था, आज वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझता है। लोगों को ठग ठग के, लोगों से चंदे मांग मांग के आप इस तरह के आला फैशनी कपड़े पहनते हैं जैसे आप तो मिस्टर बुशी के कंपनी के मालिक हैं, या लैंड क्रूजर तो आपकी कंपनी बना रही है, या आपके तो तेल के कुएं हैं। उस औकात में रहो ना, उस औकात में रहकर खाओ। पादरी की बीवी ऐसे लगती है जैसे वो पता नहीं कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि गरीब गुरबा से आप चंदा 10 15 रुपए इकट्ठे करके आप फैशनी बने हुए हो। लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके आप लोगों के ऊपर धौंस जमा रहे हो। ना तुम्हारी कुछ अच्छी खासी कोई स्टडी, ना जिस्मानी स्टडी, ना रूहानी स्टडी, ना टेक्निकल कोई स्टडी, ना कोई आपकी कोई बाकायदा डिप्लोमा डिग्री। तो किस तरह की दौंस जमा रहे हो? आपको वो लोग मिले हैं जिनको बिस्किट देते जाओ और वो आपके पांव चाटते रहेंगे। आप तो वो ऐसे शख्स हो कि बिस्किट भी नहीं देते, मुफ्त से उनको पांव चटा रहे हो, बातें सुना के। खुदा का कलाम जो दो-धारी तलवार की मानद है, यह याद रखना। अगर थैंक्स गिवन जिंदगी में नहीं है, कुर्बानी नहीं है, तो यही तुम्हारे बच्चे, यही तुम्हारी बच्चियां बेरा रवि का शिकार होंगी। जैसे यसाया की किताब में लिखा है, बच्चे नशई हो जाएंगे और लड़कियां आवारा हो जाएंगी और बीवियां बदकिरदार हो जाएंगी। फिर पता चलेगा हमने तो इतनी खुदा की खिदमत की, हमें क्या मिला? भाई तुमने खुदा की खिदमत नहीं की, अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुमने फ्रॉड किया खुदा के नाम पे। जैसे मत्ती के इंजील 7वें बाब में लिखा है, उस दिन मैं साफ उनसे कह दूंगा, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत भी ना थी। उसके वाकफ होने के लिए, उसके करीब होने के लिए उसको जानना जरूरी है। यह बाइबल का खास मैसेज है। सबसे पहले खुदा को जानना, फिर खुद को जानना कि मैं कौन हूं, और फिर इब्लीस को जानना कि वो उसका किरदार और उसका अमल क्या है, और फिर जानना कि मैं कैसे लोगों में रहता हूं, और पांचवी बात कि खुद बचकर दूसरों को बचाना। यह है आपकी बरकत, यह है थैंक्स गिवन। साल चढ़ रहा है, कोरोना से बच गए हैं, थैंक्स गिवन सीख जाओ, कुर्बानी देना सीखो,
برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. جے مسیح کی. کچھ تھوڑا سوچو بھی اور